Good evening, friends. Here is a lesson from the Hindu, and this lesson is about China and decoding China, like understanding about China, and as at the same time learning lessons from a relationship from India and China. Just as China, and this article has been written by the renowned author and parliamentarian Shashi Tharoor, and just as you know, he is a very learned person, and nowadays he has become the face of India's prowess, like India's capability to deal foreign affairs, and he is from opposition, but government has chosen him to represent India various times. So here we are just decoding, we are just learning something new about from this article. uh, like determined moves China's determined moves to target India, because China for a very long time has been busy in targeting India, are part of a meticulously calibrated. Meticulously means very minutely everything is being judged by China. Calibrated means targeted, plan to safeguard. Safeguard means to secure and to defend. Its core means the basic economic interest. Core means hota hai the basic things. China has been trying to safeguard its core in economic interest and its internal stability. Internal stability means like internal peace and security. The exodus, the writers here describes about the exodus. Exodus means hota hai influx of people, like if the large number of people start going and start leaving from the country, then that is called exodus of over 300 Chinese engineers from Foxconn, Pivotal, iPhone, 17 manufacturing facilities in Tamil Nadu and Karnataka. Like this iPhone factory is in China, it is in Tamil Nadu and Karnataka, and there used to work 300 Chinese engineers, but they now have been called by China. A recent step has been taken. Ostensibly means openly, executed means hota hai followed under corporate directive, and a corporate decision was taken that 300 Chinese engineers should be sent to China. Is far more than an administrative recalibration. Recalibration means hota hai the process which has been done by a lot of thinking. So this move, we just cannot overlook that this move has been just taken for administrative reform. It is a meticulously calibrated stratagem. Stratagem means hota hai stratagem means a tactics, and what type of tactics is it? It is a meticulously calibrated stratagem. Stratagem, like China has played a very important role in this, had played a very important role in establishing this plant, but now China has just called 300 its worker from India, and it's a very deliberately discussed move which has been taken, and it designed to arrest India's bargaining manufacturing. Burgeoning means hota hai burgeoning means इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस. लाइक भारत भी ये प्रयास कर रहा है कि आईफोन के क्षेत्र में और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं उनका निर्माण हमारे यहाँ हो, एंड टू परपिचुएट अ यूनिपोलर एशिया. और ये भी प्रयास कर रहा है कि एशिया को लाइक चाइना ये ऐसा प्रयास कर रहा है कि एशिया को यूनिपोलर बनाया जाए.
क्योंकि अमेरिका वहाँ है, तो इतना आसान नहीं है कि अमेरिका को बीट करके नंबर 1 की पोजीशन हासिल करना। अंडर बीजिंग्स ओवर रीचिंग, ओवर रीचिंग मीन्स होता है दूरगामी, इकोनॉमिक हेजमनी, हेजमनी मीन्स होता है लाइक यूनिपोलर, जैसे अमेरिका ने हेजमनी लाइक दादागिरी वाला जो था लंबे समय तक एंजॉय किया, उस पोजीशन को एंजॉय करना चाहता है। अ जियो इकोनॉमिक मूव, और ये मूव क्या रहा है, दिस कैलकुलेटेड विड्रॉल, और जो कैलकुलेटेड मीन्स ये नपा तुला, विड्रॉल इज़ नॉट सिंपली लॉजिस्टिकल रिशफलिंग। लॉजिस्टिकल मीन्स होता है चीज़ों को इधर लाना ले जाना, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए यूज किया जाता है। बड़े बड़े जो मूवमेंट होते हैं संरचनात्मक स्तर पर चीज़ें लाई ले जाई जाती हैं, तो उसमें सब प्रयोग किया जाता है। रिसफल मीन्स होता है, रिसफल होता है कि कुछ कर्मचारियों को यहाँ से ले जाकर वहाँ ले जाना, वहाँ से यहाँ लाना, लाइक ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग, यू कैन अंडरस्टैंड। इट्स अ सटल ये लाइक येट पोटेंट। शटल मीन्स होता है साइलेंट, येट पोटेंट, पोटेंट मीन्स होता है शक्तिशाली, पावरफुल। जियो इकोनॉमिक मैनूवर, मैनूवर मीन्स होता है चाल। ये विशेषकर आर्मी जो क्षेत्र, आर्मी का जो मामला है उसमें यूज किया जाता है। टैक्टिक्स एंड स्पेशल टाइप ऑफ टैक्टिक बाई अ राइवल एप्रीहेंसिव ऑफ राइजिंग इंडिया एंड चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि ये ऐसी जियो इकोनॉमिक भू आर्थिक जो मैनूवर मीन्स एक युक्ति अपनाई गई है चाइना के द्वारा, क्योंकि वो क्या है, राइवल एप्रीहेंसिव, वो डरा हुआ है राइजिंग इंडिया। और आपको ये जो है आप इसको ध्यान देते रहिए, क्योंकि लिखा किसने है, शशि थरूर ने। ऐसा नहीं है कि कोई ये जो है सत्ताधारी पार्टी का लिख रहा है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही रहा था और हो रहा है। द रिकॉल ऑफ दीज हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियंस, और जो रिकॉल मीन्स वापस करना, हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियंस जो इनको यहाँ से वापस ले लिया गया है। possessed of invaluable expertise, possessed of invaluable expertise, expertise मीन्स होता है ज्ञान, invaluable मीन्स होता है जिसकी बहुत कीमत हो, possessed मीन्स वो रखते थे। ये सारे लोग क्या होते थे, बहुत ज्ञानी थे। in establishing sophisticated production lines, sophisticated मीन्स उन्नत, जो एक स्तरीय चीज़ें थीं उनमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते थे। ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशनल इफ़िशियंसीज़, और क्या करते थे, ऑप्टिमाइज़ करते थे ऑपरेशनल इफ़िशियंसीज़, जो विभागीय जितने भी काम था उसको बहुत कुशलता से करते थे। एंड ट्रबल शूटिंग द लेब्रेंथाइन, लेब्रेंथाइन मीन्स होता है जटिल चीज़ें, कॉम्प्लेक्सिटीज़ मीन्स और जटिल ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, जो आधुनिक दुनिया में ये जो निर्माण क्षेत्र की जटिलताएं हैं उनको ये क्या करते थे, ट्रबल शूटिंग मीन्स होता है जितने भी समस्याएं आती थी तो उसको ये सॉर्ट आउट करते थे। रिप्रेजेंट डेलिब्रेट इम्पेडिमेंट टू द क्रूशल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब ये 300 लोग जो यहाँ से गए वो क्या बताते हैं, डेलिब्रेट इम्पेडिमेंट, डेलिब्रेट मीन्स जांचा परखा, इम्पेडिमेंट मीन्स बाधाएं, टू द क्रूशल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये जो जटिल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल था इन सब चीज़ों का। सच नॉलेज इज द बेडरॉक, और बेडरॉक मीन्स होता है आधारभूत। सच नॉलेज, ऐसे जो नॉलेज होते हैं बेडरॉक होते हैं, अपॉन विच, जिस पर इंडिया सीक्स, इंडिया चाहता है टू कंस्ट्रक्ट, बनाना, इट्स एडिफिस, एडिफिस मीन्स होता है भवन, ऑफ एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, और इंडिया इस पर क्या करना चाहता था, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपना जो है महत्वपूर्ण स्थान बनाना चाहता था। एंड इट्स विद होल्डिंग स्ट्राइक्स एट द वेरी हार्ट ऑफ इंडियाज एस्पिरेशनल एसेंट, एस्पिरेशनल एसेंस मीन्स होता है जो आकांक्षी, जो चढ़ाई, एसेंट मीन्स होता है चढ़ाई, तो यहाँ इसलिए लिया जाएगा कि इस अर्थ में इसको लिया जाएगा एस्पिरेशनल, भारत का जो आकांक्षी विकास था, भारत ने जो सोच रखा था उस पर ये क्या किया है, विद होल्डिंग स्ट्राइक्स, इसने भारत के सीने पर क्या किया है, एक तरीके से स्ट्राइक किया है ऐसा काम करके। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त चाइना हैज़ लिबरेज्ड इट्स डोमिनेंस, चाइना लिबरेज मीन्स एंजॉय करना, इट्स डोमिनेंस जो चाइना का प्रभुत्व रहा है, इन रेयर अर्थ प्रोडक्शन, रेयर अर्थ मीन्स होता है देयर आर सम मटेरियल्स विच आर ऑफ
much value, and these rare earth minerals things are only found in China and some other countries, but other countries are not in a situation just to make something out of it. But China has this technology, and China is just producing rare earth minerals, and in whole world China is exporting it. So now China has been meticulously trying to halt the progress of India in electronic field, and now USA is also facing problems on this issue. तो इसमें है कि चाइना ने हमेशा जो रेयर अर्थ मिनरल हैं उन पर जो है अपना प्रभुत्व बनाए रखा है, और उसको वो इंजॉय करता रहा है। वहाँ क्या क्या ऐसी चीज़ पाई जाती हैं, जैसे गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट एंड रेयर अर्थ मैग्नेट्स विच आर क्रूशल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टू इंडिया। चाइना हैज़ आल्सो इम्पोज्ड कर्व्स। कर्व मीन्स होता है बाधा। China has also imposed curbs on the export of other critical minerals that are vital for various high-tech industries। और चाइना ने कर्व मीन्स होता है बाधा, इम्पोज मीन्स होता है किसी पर प्रतिबंध लगाना। और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर वेरियस मीन्स हाई-टेक इंडस्ट्रीज़, और जो अत्याधुनिक उद्योग हैं उनके लिए तमाम क्रिटिकल मिनरल्स हैं विच आर ओनली बीइंग प्रोड्यूस्ड बाई चाइना। तो चाइना ने उस पर बैन लगा दिया है। देयर हैव बीन आल्सो बीन इनफॉर्मल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, और अगर कुछ चीज़ों पर बैन नहीं लगाया है तो देयर हैव बीन इनफॉर्मल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। तो वहाँ अनौपचारिक तरीके से तमाम प्रतिबंध लगा दिया है ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना टू इंडिया। कैपिटल इक्विपमेंट मीन्स होता है जो पूंजीगत वस्तुएँ थी, इक्विपमेंट मीन्स वस्तुएँ थीं फ्रॉम चाइना टू इंडिया, और वहाँ के लोग अपना चाइना के लोग जो है भारत में पूंजीगत चीज़ें भेजते थे, उन पर भी चाइना ने रोक लगा दिया है, इंक्लूडिंग हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक असेंबली। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली मीन्स छोटी छोटी चीज़ें हैं जो असेंबल होती हैं यहाँ के, उन पर भी चाइना ने रोक लगा दिया है। अदर सेक्टर्स और दूसरे क्षेत्रों पर हैवी ड्यूटी बोरिंग मशीन्स, अभी भी जो बोर करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें हैं और सोलर इक्विपमेंट है, सीवियरली इम्पैक्टिंग इंडियाज़ एबिलिटी, और वो बहुत बुरी तरीके से भारत का जो एबिलिटी टू सेटअप एंड एक्सपैंड इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। भारत चाहता है कि स्वयं ऐसी चीज़ें वो स्थापित करे, लेकिन चाइना ने सोलर इक्विपमेंट और बोरिंग जो मशीन्स हैं इन सबको स्थापित करने में और इसकी जो है इसका विस्तार करने में बहुत बाधा खड़ी कर दी है भारत के सामने। द ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ऑफ दीज एक्शंस, और जो इनका एक ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस है, इम्प्लीकेशंस मीन्स जो जितने भी ये एक्शन लिए गए हैं उनका जो अगर बृहद में जाएं और इनका मतलब क्या है, इम्प्लीकेशंस में आशय क्या है, पर्टिकुलरली द रिकॉल ऑफ इंजीनियर्स, की अपने इंजीनियर्स को बुला लेना, एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, और प्रतिबंध स्पेशलाइज मीन्स कुछ विशेष वस्तुएं हैं, इज़ अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट, ये जाना परखा प्रयास है, टू लिमिट सीमित करने के लिए द ट्रांसफ़र ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जो अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है जो चाइना से हम प्राप्त करते थे उस पर चाइना ने रोक लगा दिया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड नो हाउ टू इंडिया। और एक वो था, एक अभियान था नो हाउ टू इंडिया, उससे भी जो है भारत में चीज़ें जो है कहीं ना कहीं भारत उसे लाभ उठाता था, उस पर भी रोक लग गया है। दिस एम्स टू कीप इंडिया डिपेंडेंट ऑन चाइनीज़ इनपुट्स, और इसकी प्रयास ये है कि भारत हमेशा क्या रहे, डिपेंडेंट, निर्भर रहे चाइना के इनपुट पर। इनपुट मीन्स जो सूचनाएं वहाँ से मिलती थी, एंड प्रिवेंट इट, और इसे रोक देना फ्रॉम डेवलपिंग अ ट्रूली सेल्फ रिलायंट हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग बेस। और चूँकि भारत क्या बनता जा रहा था, हाई जो है सेल्फ रिलायंट, भारत आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में प्रयास कर रहा था, एंड हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग बेस, मैन्युफैक्चरिंग का एक बृहद बेस बनना चाहता है भारत मेकिंग इंडिया प्रोग्राम के तहत, और अच्छा खासा काम चल रहा है यहाँ, लेकिन चाइना उस पर जो है प्रतिबंध लगा रखा है तमाम चीज़ों पर। क्रूशियली मेनी ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस, और मुख्य रूप से
ये जो प्रतिबंध हैं आर नॉट फॉर्मलाइज्ड बैन। और इसको चाइना ने, आप ये नहीं कह सकते कि चाइना ने कोई आर्डर जारी किया है और उसको फॉर्मल तरीके से बैन किया गया है, औपचारिक तरीके से, बट आर इम्प्लीमेंटेड, लेकिन ऐसा बताया गया है थ्रू वर्बल इंस्ट्रक्शंस। लेकिन क्या है इम्प्लीमेंटेड मीन्स लागू करना, इम्प्लीमेंट मीन्स थ्रू वर्बल मीन्स मौखिक, इंस्ट्रक्शन में निर्देश, मौखिक निर्देश दिए गए हैं टू Chinese companies and authorities that put pressure and just place impediments as long as possible, कि हमेशा बाधा खड़ी करो जितना भी संभव है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिले करो, सारी चीज़ें कुल मिला के इंडिया को मदद ना हो पाए। दिस मेक्स देम हार्ड टू डायरेक्टली चैलेंज। और इसी के चलते, चूँकि वर्बल है, मौखिक रूप से कहा गया है, इसीलिए विश्व व्यापार संगठन में या अदर फोरम पर भारत उनको चैलेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि रिटर्न में कुछ नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। बट इक्वली इफेक्टिव इन डिसरप्टिंग सप्लाई चेन। लेकिन ये चीज़ें प्रभावी हैं सप्लाई चेन को डिसरप्ट करने में, जो वस्तुओं का आदान प्रदान है, इंक्रीजिंग कास्ट, और कास्ट को इंक्रीज़ करने में, एंड क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। और जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, निर्माण करता है, उनके लिए हमेशा अनसर्टिनिटी या अनिश्चितता खड़ी करो, सप्लाई चेन में बाधा ले आओ, और इंक्रीजिंग कास्ट, उससे कास्ट बढ़ रही है इन एसेंस। और अगर सार में कहा जाए, चाइनाज स्ट्रेटजी इज़ मल्टी प्रॉन्ग्ड। चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो मल्टी प्रॉन्ग्ड है, मीन्स बहुत सारे चीज़ों पर चल रही है, मल्टी, लिबरेजिंग इट्स कंट्रोल। और चाइना एंजॉय कर रहा है अपना जो उसका कंट्रोल है ओवर क्रूशल रेयर मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स जो वहाँ पाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली वस्तुएं हैं, एंड इवन ह्यूमन कैपिटल, और यहाँ तक कि मानव पूंजी, टू इम्पीड मीन्स बाधा खड़ी करना इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग एसेंट, जो भारत की निर्माण क्षेत्र की जो ऊपर की तरफ चढ़ाई थी उस पर बाधा खड़ी कर रहा है, स्पेशली इन हाई स्टेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि भारत भी हाई स्टेक्स जो उन्नत किस्म की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो भारत इसमें भी आगे जा रहा था, इसलिए। एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर, दीज एक्शंस व्हेन व्यूड थ्रू द प्रिज्म ऑफ, और प्रिज्म मीन्स होता है जो प्रिज्म हमारे यहाँ निकलता है, अम्ब्रेला लाइक छाता, और एक बृहद नज़रिए से देखा जाए तो ये क्या बताता है, बीजिंग्स एंजाइटी, जो चीन की चिंता है, कंसर्निंग इंडियाज़ इमरजेंस एज ए पोटेंशियली फॉर्मिडेबल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटर। एंजाइटी मीन्स चिंता, कंसर्निंग मीन्स संबंध रखती है, इंडियाज़ इमरजेंस भारत के उद्भव, ऐसा पोटेंशियली मीन्स शक्तिशाली, फॉर्मिडेबल मीन्स भयानक या बहुत बृहद स्तर पर, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटर जो निर्माणकर्ता, जो प्रतिद्वंदी है, इन एन एरा ऑफ फ्रंट सोरिंग बाय द बेस्ट अलाइन परफेक्टली विद इट्स बॉर्डर स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन। और उस दिशा में चाइना बहुत चिंतित है कि भारत क्या हो रहा है, जो निर्माण का एक हब बनता जा रहा है, और इस युग में कि जब जो मित्रता है वो क्या हो रही है, परवान चढ़ रही है और आगे जा रही है, परफेक्टली विद इट्स बॉर्डर स्ट्रेटजिक कैलकुलस, और जो इसका बॉर्डर पे रणनीतिक जो गुणागणित है उसमें भी भारत कहीं ना कहीं चाइना को टक्कर दे रहा है। चाइनाज economic success is increasingly predicated upon maintaining robust export revenues. Robust means शक्तिशाली, export revenues means जो बाहर से निर्यात करके रेवेन्यू जनरेट होता था। सक्सेस इज इंक्रीजिंगली प्रिडिकेटेड मीन्स निर्भर है। चाइना की जो सफलता है वो मुख्यतः निर्भर है कि वो बाहर चीज़ें निर्यात करता है, उससे जो रेवेन्यू कमाता है। कंसिक्वेंटली मीन्स परिणामतः एनी नेशन डेयरिंग टू चैलेंज, कोई भी ऐसा देश डेयरिंग टू चैलेंज मीन्स जो साहस रखता है चुनौती देने का, इट्स प्री इमिनेंस मीन्स पहले की जो दशा थी इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, particularly in high value sectors such as electronics, is inevitably perceived not merely as a competitor but also an existential threat. चाइना क्या कर रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत को हाई वैल्यू सेक्टर जो हैं उसमें इनइविटेबली मीन्स आज नहीं तो कल ये होने ही वाला है, तो उस तरीके से देख रहा है, हमेशा देख रहा है, लाइक परसीव्ड
नॉट मियरली एज ए कम्पिटिटर। चाइना भारत को कम्पिटिटर के ही नज़रिए से नहीं देख रहा है, बट आल्सो एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। एग्जिस्टेंशियल मीन्स होता है अस्तित्व के लिए खतरा, अस्तित्व के लिए थ्रेट मीन्स खतरा। द विड्रॉल ऑफ दीज इंजीनियर्स, और इन इंजीनियरों का जो विड्रॉल है, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट्स अ पोटेंट स्ट्रेटजम। स्ट्रेटजम मीन्स एक युक्ति होती है जो बहुत कैलकुलेटेड जो टैक्टिक्स होते हैं टू इम्प्लाई टू गेट अ डिज़ायर्ड रिजल्ट। जो इच्छित सफलता पाने के लिए इस स्ट्रेटजम का प्रयोग किया जाता है। ये आर्मी के जो है शब्दावली में अक्सर यूज होता है। तो चाइना ने ऐसा किया है, और चूँकि भारत एंड टू डिसरप्ट इंडियाज़ ट्रेजेक्ट्री। भारत ट्रेजेक्ट्री मीन्स होता है लक्ष्य और एक रेंज ऑफ थिंग्स, एंड सेफ गार्ड चाइनास लॉन्ग एंट्रेंच्ड मीन्स होता है बहुत गुंथे हुए गहरे एक्सपोर्ट मार्केट, जो निर्यात का क्षेत्र है। चाइना ने ये करके एक ऐसी युक्ति लगाई है कि भारत का जो दूरगामी जो भारत के हित हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए एक्सपोर्ट मार्केट में, और एंड इकोनॉमिक प्राइमेसी इन द रीजन, और जो आर्थिक प्रभुता है भारत की एंड बियॉन्ड, और उससे भी परे भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। इंडियाज़ एम्बिशन टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इन अ ग्लोबली कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब। और क्योंकि भारत भी ये चाहता है कि हम ग्लोबल तौर पर पूरी तरीके से चाइना को टक्कर दें, और चाइना की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए भारत कहीं ना कहीं खतरा नज़र आता है। एंड अकॉर्डिंग टू राइटर्स, why China has been doing all these things to challenge India, and why China has been just perceiving India as a uh, existential threat. Like if we talk about the population of China, then this is the main cause of concern for China. Like consider the demographic exigencies. Exigencies means होता है समस्याएं करंटली कन्फ्रंटिंग, और जो है चाइना डेमोग्राफिक जनसांख्यिकीय मुद्दे पर बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। एजिंग पॉपुलेशन हो रही है वहाँ की, और जो वर्क फोर्स है वो घट रही है, और प्रॉपर्टी से लेके सारी चीज़ों के दाम जो है बहुत बढ़ चुके हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है, मतलब इंटरनल तौर पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसको लेके लेखक ये बता रहे हैं कि चाइना का जो लंबे समय तक चाइना ने जो ट्रेड सरप्लस की जो स्थिति थी चाइना में, और वो पूरे विश्व में चीज़ों को निर्यात करता था, वो अब क्या है, खतरे में है। इसीलिए चाइना की ये व्यग्रता समझ में आती है। और इंटरनल तौर पर जो कि चाइना लंबे समय से अधिनायकवादी शासन के अधीन रहा है, तो चाइना में समस्याएं अब बढ़ रही हैं, और भारत की जो क्षमता है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विगत सालों में भारत का जो इमरजेंस है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में, और चाहे टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, भारत सेल्फ सफिशिएंट बनता जा रहा है। एक आध सेक्टर को छोड़ दिया जाए, फाइटर जेट वगैरह की जो 5th जनरेशन का है उसको छोड़ दिया जाए, तो भारत लगभग सब चीज़ बनाने की स्थिति में है वर्तमान में। और जिस क्षेत्र में भारत जो है पीछे है, वो चीज़ भी भारत कोशिश कर रहा है कि वो कुछ ही वर्षों में उसको प्राप्त कर ले। तो ये बहुत ही सारगर्भित जानकारी थी, और उम्मीद है कि इससे कुछ आप लोगों के ज्ञान में वैल्यू बढ़ी होगी। धन्यवाद।